Sisters of IPS Academy, thank you for inviting us all. Special thanks to students, HOD and Bad Talk teams. यार देखो, मैं इतना फॉर्मल रहता नहीं हूँ और रहूँगा भी नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट इवेंट है. वैसे आई ऑलवेज डू पॉडकास्ट, तो आई डोंट नो कि कैसा जाएगा इवेंट. अभी तक व्हाट आई हैव फेल्ट कि लैक ऑफ एनर्जी इज देयर because everyone is thinking there's nothing to learn from this event. So what is the point of going in an event where you don't get to learn anything? So let's talk about certain points which I feel is very important to talk about on. For example, first of all, you should know that I traveled around 850 kilometers to reach to this point. I came from Delhi and took 16 hours bus and a lot of other struggles that I have to go through. Now, first thing I would like to start with is my rally that I did back in the year 2019, I believe. So I'm not very sure about the dates. Can you play that? So I somehow managed to gather a group of people, around 300 plus people at that time. And everyone was listening to me, not because I was a good speaker, no. They were listening to me because we all shared the same focus, same motivation, and same vision. Everyone was raising their voice for animals. So that is something which I really love to do. It's like what I believe it's my karma that one has to do. Everyone has their own deeds to do in this world. So this is the rally back in 2020. And it went really well, but सच बोलूँ तो कोई change आया नहीं. अगर इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन सिस्टम, जो पिछले 60 साल से आप देखोगे एक ऐप हफ्ते में 2 बार अपडेट हो रही है आजकल, ठीक है, टू अवॉइड सिक्योरिटी ब्रीचेस. हमारा लॉ सिस्टम पिछले 60 और 70 साल से अपडेट नहीं हुआ और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एक ऐप अपडेट नहीं होती, हमारा फोन हैक हो गया. वी आर सो बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स, बट वाई आंट वी बॉदर्ड अबाउट आवर लॉ? लॉ पे हम क्यों कोई प्रश्न नहीं उठाते? क्यों हम एक कम्युनिटी नहीं बना पा रहे? बिकॉज हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. वी लैक विजन, वी लैक एम्पथी, वी लैक सिंपथी एज वेल. और जितना टाइम आगे बढ़ेगा हम वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे फ्यूचर में. तो वी हैव टू प्रिजर्व दैट बाय प्रिजर्विंग आवर ब्रेन. और जो सेम विजन शेयर करता है आपके साथ, ट्राई टू सिट विद देम. मेरे को लग रहा है मैं आप सबको बोर कर रहा हूँ. एवरीवन इज लुकिंग एट देयर फोन्स राइट नाउ, wherein they should be listening to what I am saying. Chalo, it's all right. So now let me talk about my school journey. अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैंने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा, but I'm gonna talk about very relevant points. और उसके बाद I'm gonna talk about why startup fails और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, how to avoid those mistakes. First of all, my first project, it was when I was only 17. I created my own social networking site and it was jackpinch.com. It even got featured on newspapers as well because I come from, my hometown is in Jammu. So Jammu में it was featured on Daily Excelsior, State Times, Times of India. तो उसके बाद that went really bad क्योंकि initially it was going really well, like 50,000 registrations were there in the first 3 months. And what went wrong with that? Because I was trying to eradicate the different thought process that two communities had, J&K, which is Jammu and Kashmir. तो उनकी सोच को अलाइन करवा रहा था, तो it did not end up well. Probably the timing is the reason. And if I talk about my other project, which is Grody.com, I started and I planned it. आपको आज देखने को मिलेगा 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट. मैंने ये प्लान करा था 2018 में अपने फ्रेंड के साथ, इन द ईयर ऑफ 2018, इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो हमने 10 मिनट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा. उसके बाद मुझे पता चला लॉजिस्टिक्स हैज़ लॉट ऑफ इश्यूज जो हम फेस कर रहे थे. आइटम्स कहाँ स्टोर करें, लॉट ऑफ इश्यूज वी फेस्ड एज अ स्टार्टअप. और उस टाइम इन्वेस्टर्स कनेक्ट वॉज नॉट दैट ईजी. Now, one thing all of us has to understand, let's talk about you and me. All right, if everyone is in this auditorium, they are probably thinking कि भाई इस auditorium में आके कुछ तो सीखने को मिले यार, जो हमारे काम आए लाइफ में. First, everyone has to understand कि the hardships that I have went to, बहुत से लोग वही सेम हार्डशिप फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज
अपनी टीम नहीं बना पाते प्रॉपर लोगों के साथ, चैनलाइज नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज वेरी स्ट्रांग, if someone has anger issues, they should probably go for sports. But what they are doing, they are putting their efforts, time, energy into IT. Why? खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है यार मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, ये मेरा सपना है, भाई तू ये सोच अगर कैमरा नहीं आया होता तेरा सपना होता फोटोग्राफर बनने का? भाई तू ये सोच कि तू वो चीज़ बनाता खुद के लिए कि यार मैं कैप्चर करूंगा मेमोरीज, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं. हर प्रोडक्ट अगर आप रियलाइज करोगे, स्टीव जॉब्स वन ऑफ दी कहते हैं ना वो ग्रेट फाउंडर्स में आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि इवन दो ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, उनको पता था उनको अपना मार्केट कैसे स्केल करना है. स्केलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर स्टीव जॉब्स की जगह स्टीव वॉजनियक रिप्रेजेंट करते आईफोन को लॉन्च करते टाइम, तो आई डोंट थिंक सो कि 2 सेल भी आ पाती. बट स्टीव जॉब्स वॉज रियली गुड एट वॉट ही वॉज डूइंग. पहले अंडरस्टैंड करो, हर किसी को स्टार्टअप नहीं बनाना है यार. अंडरस्टैंड करो खुद के कॉन्सेप्ट को, समझो अपने आप से कि क्या मैं जॉब के लिए बेस्ट हूं या मैं स्टार्टअप के लिए. मेरे को ऑर्डर्स मिले तो मैं काम अच्छा कर पाता हूं या ऑर्डर्स दूं तो मैं काम अच्छा कर पाता हूं. जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, एक एक बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा. सुंदर पिचाई को देख लो यार, और भी बहुत से नाम है, बट आई वॉन्ट टेक इट. खुद के नाम बनाओ और ये मत सोचो कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है उसके जैसा बनना है. जिस दिन खुद का बेस्ट वर्जन बन गए ना, आई स्वेयर मैं यहां खड़ा हूं, तुम दुनिया में बहुत नाम कमा लोगे. इवन अगर तुम जॉब में होगे पूरी कंपनी को पता होगा भाई ये बंदा कौन है, ये क्या करता है. बट अपने पैशन को समझो, अपने गोल्स को समझो. जब स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो उसको समझो कि क्यों ज्वाइन करना है. ठीक है, मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन स्टार्ट हो गया था 1998 में. जब उसने बात करी थी ना, देखो मेरी डेट्स इनकरेक्ट हो सकती है, आई एम वेरी बैड विद डेट्स एंड नंबर्स. ठीक है, तो जब क्या नाम है अपने अमेजन वाले का, जेफ बेजोस. ठीक है, तो जब जेफ बेजोस ने अपने मैनेजर को बोला कि मैं ये छोड़ रहा हूं, मेरा विजन है इसको $1 बिलियन बनाने का, तब कोई सोच भी नहीं सकता था $1 बिलियन कंपनी बनाने का. ठीक है, तो इस चीज को समझो कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग, why you want to execute those ideas, what change it will bring into the society. खुद सोचो, अपने माइंड में सोचो कि क्या प्रॉब्लम है. एवरी प्रॉब्लम हैज क्रिएटेड अ बिजनेस मॉडल. एवरी बिजनेस मॉडल हैज एडेड मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इन द डाउनलाइन. अगर मैं टेक की बात करूं, बहुत टेकी है यहाँ पे, सारे इंजीनियरिंग फील्ड है, राइट. चलो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा टेक प्रोडक्ट है जो चलता है? लाइक विजन से, अपने माइंड सेट से सोच के आंसर देना. लाइक क्या चीज तुम आज दोगे कंट्री को या वर्ल्ड को तो वो चलेगा? मैं बताऊं, पता है चैट जीपीटी क्यों चला? क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज 2030 में आएगी. उसने बंदे ने 2022 में बना के दे दी, कहा ये लो चलाओ. फेसबुक, ऑर्कुट आया था उससे पहले, नहीं चला ऑर्कुट. क्यों? क्योंकि वो उसी टाइम पे स्टिक कर गया. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजी. तुम सोच रहे हो ना यार फ्लाइंग कार आ जाएगी 2030-35 तक, और वो अगर उसी टाइम आई तो नहीं चलेगी भाई, बहुत कंपटीशन आ गया होगा. बट जिस बंदे ने 2025 में ला दी ना, वो धंधा बना लेगा उसी टाइम. तो हमेशा बिजनेस मॉडल को समझो, प्रॉब्लम को समझो, और ये समझो कि वो टेक्नोलॉजी जो मैं आज ला के दे रहा हूं, क्या वो 15 साल बाद की टेक्नोलॉजी है? और अगर जिस टाइम ये समझ आ गया ना कि हाँ यार ये 15 साल बाद की है, दैट इज द पॉइंट वेर यू रियलाइज कि भाई अब बन गया बिजनेस. कुछ भी देख लो, बी इट शादी.com, कोई भी रिसर्च करो यार, यू विल रियलाइज कि टाइमिंग इज द वन थिंग वन हैज टू फोकस ऑन इन बिजनेस. फिर रही टीम बिल्डिंग, फिर रहा उसको कैपिटलाइज करना, रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करना, ये सब हो जाता है. एवरीथिंग कैन बी डन ऑन द लेटर ऑन, बट द मेन एंड द क्रूशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं. मैं जैसे एक टेक का सोच रहा हूं, मेरा है फरी फ्रेंड्स अलायंस का विजन. मेरा विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है. आई वांटेड टू क्रिएट एक्स प्लेटफॉर्म, एनिमल इंटीग्रेटेड क्रॉस चिपसेट इकोसिस्टम, जिसमें मैं चाहता हूं कि अगर मैं मर जाऊं ना, लाइक 5 साल बाद भी मरूं, तो एटलीस्ट वो चीज है ना वो चलती रहे. वैसे लोग ढूंढूं जो उस आइडिया के साथ अलाइन कर सकें.
हमेशा ये मोटिवेशन लेके चलो कि जो भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो ना और जिस बंदे को तुम ला रहे हो, स्टार्टअप क्यों फेल होता है? एक बंदा आ जाता है एक माइंडसेट का, दूसरा कहता है जस्ट बिकॉज ये बढ़ जाएगा, उसको लगता है उसके पावर है बात करने में, स्टाइल में, काम करने में, बड़ा बनाने में इस चीज को, तो वो उसके साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जुड़ जाता है कि भाई तू आगे बढ़ जाएगा तो चल मैं भी, मेरी नाव भी पार करा देगा। बट उसको ये नहीं पता वो उसको लेके डूब जाएगा। ठीक है, दैट इज द वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग। हमेशा ट्राई करो कि जब भी किसी के साथ जुड़ रहे हो उसके विजन से अलाइन हो पा रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, कि अगर वो तुम्हें एक आइडिया दे रहा है ना कि यार मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूं जो मार्स में डिलीवरी कर दे, वो तुम्हें बताएगा यार हम पता कैसे डिलीवरी करा सकते हैं, चल इलोन मस्क से बात करके आते हैं यार। वो कहेगा भाई ये कैसे पॉसिबल है, वो कहेगा रास्ता मैं ढूंढ के लाऊंगा ना, तू बस बनाने की कोशिश कर कि हम कैसे क्या चीज डिलीवर करने वाले हैं। वो वहां डिलीवर हो सकती है, नहीं हो सकती है, हजारों प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे। तुम खुद के बेस्ट क्रिटिक हो, तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें कहते हैं ना यार मेरा ये दोस्त है, ये मेरा वो दोस्त है, भाई 10 क्वेश्चन कोई पूछ लेगा ना, वो नो के आंसर दे पाएगा, 10 के नहीं दे पाएगा, बट तुम खुद से 10 क्या 50 के भी पूछोगे, 50 के करेक्ट आंसर आएंगे। ठीक है, तो हर एक बंदा खुद का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। और ये चीज अंडरस्टैंड करना कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए या कभी भी कोई चैलेंज आए, हमेशा पीछे मुड़ के देखना कि यार लाइफ में कितने सेक्रीफाइस करके उस स्टेज में पहुंचे हो। तो हमेशा याद रखो कि जो बंदे दिल की सुनते हैं ना वो कम गिल्ट और रिग्रेट लेके चलते हैं लाइफ में, और जो कम गिल्ट और रिग्रेट लेके चलता है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग बंदा कहलाता है, बहुत सही होता है। भले ही वो सक्सेसफुल ना हो, वो खुश रहता है। एट द एंड एवरीवन इज विलिंग टू लिव फॉर व्हाट? हैप्पीनेस। Either it comes with money or either it comes with pain, gain, whatever. But at the end everyone wants to be happy. I don't know मेरा कितना engaging हो रहा है आप लोगों के साथ, नहीं हो रहा, माइंड कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट आई एम श्योर अगर तुम लाइफ में जॉब करना चाहते हो और समझना चाहते हो कि यार तुम जॉब के लिए बने हो या बिजनेस के लिए बने हो, ask questions from yourself. Do you need instructions from others? If yes, then जॉब के लिए बने हो भाई उसी में जाओ। सोचो कि जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें, जॉब के लिए ऐसे प्रिपरेशन करो कि भाई 8-10 लाख का पैकेज मिल जाए। रिसर्च करो मार्केट में। लोग क्या कहते हैं ना कि यार रिसर्च कुछ नहीं है, भाई $40 बिलियन स्पेंड करता है अमेजन हर साल रिसर्च में, गूगल हर साल $50 बिलियन रिसर्च में वेस्ट करता है। भाई ये कंपनीज रिसर्च में क्यों वेस्ट कर रही है, इनका क्या जा रहा है? नहीं करें। टेस्ला कर रहा है, हर कंपनी रिसर्च पे ही चल रही है। अगर रिसर्च इंपॉर्टेंट, बस अब ये है हमारे स्टूडेंट लाइफ में क्या रहता है, मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम खुद स्टूडेंट्स को करूंगा। दे आर नॉट इवन क्वेश्चनिंग द सिस्टम। सुन लिया जी स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया उस बंदे ने, घर वालों ने भड़का दिया जी, उसने बेटे ने देख 4 स्टार्टअप कर दिया। पहले क्या रहता था, अरे उसके बेटे ने देख 50% ज़्यादा मार्क्स ले आया तेरे से, अरे मैं तो 60 लाया हूँ, अरे यार देख उसका बेटा 90 ले आया। पहले ये चलता था, अब ये चल रहा है भाई देख उसका बेटा स्टार्टअप कर रहा है, उसका बेटा इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तू क्या बन रहा है? पहले खुद को समझो कहां पे क्या चीज चैनलाइज करनी है और क्यों करनी है और बनना क्यों है। कोई कह रहा है इसलिए बनना है या खुद के लिए बनना है। अपने आप को जिस दिन ये समझा दोगे ना कि जॉब के लिए बनना है, जॉब रेडी होना है या बिजनेस रेडी होना है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट समझाओ कि बनना क्यों है और क्या मैं उसमें फिट हूं। जस्ट क्या होता है ना, 99% लोग फेल क्यों होते हैं शेयर मार्केट में, बिजनेस में, जॉब लाइफ में? वो जॉब लाइफ के लिए बने भी नहीं होते हैं कुछ लोग, और वो घुस जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी, डाउटिंग देमसेल्फ। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। जैसे ही क्वेश्चंस पूछने लगोगे बहुत बड़े बन जाओगे। अब मैं आता हूँ फरी फ्रेंड्स के विजन पे। जब फरी फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया, आई शेयर दैट विजन विद सार्थक। जो मेरा काम 2020 का पेंडिंग था, तो आई वॉज लाइक सार्थक दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड, एंड अभी मैं सिर्फ 5% मतलब अभी फरी फ्रेंड्स इज जस्ट 1% ऑफ व्हाट आई रियली वांट टू क्रिएट द एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, अभी 1% में व्हाट वी हैव अचीव सो फार कि आप furryfriendsalliance.com में जाओ, आप इजीली डॉग्स के लिए बाउल प्लेस कर सकते हो, और जो एनिमल लवर हैं वो जाके देख सकते हैं कि बाउल कहाँ प्लेस है, एम्प्टी है, भरा है, खाली है, वहाँ वो टैग कर सकता है लोकेशन को और पिंग कर सकता है। अभी हम पुश नोटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, लाइक रेडियस के अंदर 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी वॉलंटियर्स होंगे उनको पुश नोटिफिकेशन जाएगी। इससे क्या होगा, जैसे कैटल है, गॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया फ्रॉम बेन कि भाई कैटल को गाय कैसे पानी पीती है, यू आर थिंकिंग अबाउट डॉग, बट व्हाट अबाउट काउस? तब लाइक यस, काउस के लिए अगर बाउल लगेंगे तो 10 लीटर का लगेगा, 20 लीटर का लगेगा, राइट, क्योंकि वो पानी ज़्यादा पीते हैं। तो इट्स लाइक यार वेरी ग्रेट आइडिया, तो इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक बाउल सिस्टम में लाइक वील हैव द एंटायर कि भाई वहाँ पे ना हर बंदे को पता हो कि यहाँ पे काऊ का है, यहाँ पे डॉग्स का है।
यहाँ पे बर्ड्स का है, तो यू कैन गो इनटू फरी फ्रेंड्स अलायंस। अभी इसके बाद वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, बट याद रखना वट एवर यू डू इन योर लाइफ, वट एवर यू गोना लर्न इन योर लाइफ, it's not someone else is going to teach you, it's you what you want to teach yourself. It's not me coming here and teaching you anything, it's you what you really want to learn from others. जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, when I was growing up, मैं 6th क्लास में था, मैं रोज लेट स्कूल में, रोज लेट, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता, बस ड्राइवर रोज परेशान, रोज हॉर्न मार रहा बस के, मैं कह रहा हूँ आ रहा हूँ 5 मिनट कब 15 मिनट पड़ते थे पता ही नहीं चलता था, रोज लेट। पापा परेशान, मम्मी परेशान, कह रहे उठ जा भाई, कभी तो टाइम का उठ जा, उसको भी खुश कर दे। तो एक दिन उसने सिर्फ एक बात बोली, एंड इट वाज विंटर्स टाइम, उसने बोला बिस्तर नहीं छोड़ता, तुम्हें बिस्तर को छोड़ना पड़ता है। तो इट्स नॉट कि मैंने बस ड्राइवर से कोई चीज़ सीखी, इट्स अबाउट कि वो बंदे ने मेरे को जो चीज़ उसने बोली ना, मैं उससे कनेक्ट कर गया। ऐसे हज़ारों लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, नहीं कनेक्ट हो रहा था, टीचर्स ने बोला नहीं कनेक्ट हो रहा था, पेरेंट्स ने बोला नहीं कनेक्ट हो रहा था। फाइंड दैट पर्सन कि जिससे तुम कोई भी चीज़ सीख सको, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे मैंने एक बस ड्राइवर से सीख लिया कि यार हाँ, और जैसे ही बजते थे ना 6, मैं बिस्तरा छोड़ देता था, मैं कहता था भाई इसने नहीं छोड़ना मेरे को, मैं इसको उठा के रख देता हूँ साइड पे। तो दैट वाज माय मोटिवेशन कि भाई उस टाइम से मैं कभी लेट ही नहीं हुआ। तो हमेशा किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझो। यू आर स्टूडेंट्स, यू विल लर्न फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम योर एल्डर्स। मान लो जूनियर कोई सिखा के जा रहा है, अरे हमसे जूनियर है भाई, क्यों सीखे, ईगो पे ले लेते हैं बात, क्यों ईगो एटीट्यूड इतना यार। वी लिव इन अ कर्म भूमि, इंडिया इज इन कर्म भूमि, तो ईगो एटीट्यूड तो हमारे देश में ना कभी था, ना कभी होगा, ना कभी रहना चाहिए। तो जो बंदे ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना आगे चल के, तो फिर लाइफ विल ट्रीट देम द वे दे आर। ठीक है, वो बोलते ना यार मेरी लाइफ ऐसी थी वैसी थी, अब कैसी हो गई, वो इसीलिए हो जाती है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनीवन हु कम्स इन योर वे। हो सकता है छोटा बच्चा 5 साल का आपको बहुत बड़ी चीज़ सिखा दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। बड़े से बड़े आइडियाज़ छोटे से छोटे बच्चों से भी आए हैं। ठीक है, 15 साल का बच्चे ने भी कोई आइडिया सोचा, तो वो अगर एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, नेटफ्लिक्स से पहले भी 1-2 कंपनी आई थी, दे फेल्ड, क्योंकि तब बैंडविड्थ लिमिट थी। बट जब नेटफ्लिक्स 2005-6 में उसने स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट की, तो बैंडविड्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी यूएस में। तो ट्राई करो, प्रॉब्लम समझो कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे को क्या बनाना है। भाई सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं है, डोंट गो आफ्टर बिजनेस। माई लास्ट वर्ड्स फॉर एवरीवन, बिजनेस के पीछे मत भागो, खुद को समझने के पीछे भागो। लर्न कि भाई तुम जॉब के लिए बने हो, बिजनेस के लिए बने हो। अगर ये समझ आ गया ना, आई स्वेयर कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ना जॉब में फोड़ने से ना धंधे में फोड़ने से। ठीक है ना, कोई कहता है ना यार बनिया कैटेगरी है, बहुत इंटेलिजेंट, ये फैक्ट थे कुछ हद तक। ठीक है, नाउ चीज़ों को समझो कि वो अपनी कैटेगरी को समझते थे कि भाई ये बनिया है ना, ये मैथमेटिक्स अच्छा कर लेगा। उस टाइम में वो पेरेंट क्या करते थे, वो सारी ट्रिक्स अपने बच्चों को देते थे। आजकल नहीं हो रहा वैसा, द जनरेशन हैज चेंज्ड। तो खुद को ही समझना पड़ेगा। गो टू गुड एजुकेशन काउंसलर्स। अगर लगता है बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, 10 चीज़ें करनी है, आ गया यार ये टिकटॉक बनाना है, फेसबुक बनाना है, लिंक्डइन, उसके चक्कर में एक भी नहीं बना पाता बंदा, क्योंकि 10 चीज़ें और आ जाएंगी अगले साल। बंदा कहेगा यार मैं साला करूँ तो करूँ क्या, मैं तो इधर ही फंस पड़ा हूँ, ये 5 बनानी थी अब 10 बनानी है, फिर अगले साल आ जाएगा 15 बनानी है। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि एजुकेशन काउंसलर्स के पास जाओ। ट्राई टू फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू। तुम्हारे दोस्त, तुम खुद को सबसे पहले हेल्प करो। थैंक यू गाइस, आई होप मेरी एंगेजिंग रही होगी सेशन।